Hello students, how are you all? Good. So today again I am here with a new topic, that is partners commission. Before this video we have discussed regarding the distribution of profits, interest on capital as well as interest on drawing of the partners. Now one more important component that is to be recorded in the profit and loss appropriation account, that is partners commission. And partners commission, first let me clear one thing, that any partner who is doing business on behalf of all the partners can get commission only if it is in agreement. In the absence of agreement, no partner would get any commission amount. So partners can get commission only if there is an agreement in the partnership business. So if a partner will get commission as per the agreement, how can partner get the commission? The partner's commission can be given on profit, means percentage will be fixed, that partner will get 5% commission on profit, as well as partner's commission can also be calculated on their sale amount. On sales amount, means partner can get commission, or partner's commission can be calculated on profit or on selling amount as per their agreement. So if a partner is getting commission on profit, then there may be two situations, or there may be two types of calculation if a partner will get on profit. First will be before charging such commission, and second after charging such commission. After charging such commission means if the calculation or if the commission amount is to be calculated on profit amount, then there may be two situations. Commission can be calculated on the profit which have been brought out in the partnership form before charging commission, as well as partners commission can be calculated on the profit which will come after the deduction of commission. ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन होगा. इसके केस में कमीशन का कैलकुलेशन क्या होगा? कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100. This would be the formula if commission is to be calculated before charging, and if there will be after charging commission, then formula will be commission is equal to profit multiplied by rate of commission upon में 100 plus rate. ठीक है. इसमें कमीशन का मतलब, यानी ये कमीशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉफिट, ठीक है, जिसमें से अगर जो एप्रोप्रिएशन में हम करते हैं कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, इन सब के प्रोविजन के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उससे हमको क्या करना होगा, उस डिविजिबल यानी बचे हुए रिमेनिंग प्रॉफिट्स में क्या करना होगा, परसेंटेज से कमीशन कैलकुलेट करना होगा. देन उसके बाद कमीशन डिडक्ट करेंगे, उसके बाद नेट डिविजिबल अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा. इसी तरीके से यहाँ का ये जो प्रॉफिट होगा या ये जो कमीशन होगा, वो कमीशन उस प्रॉफिट का परसेंटेज होगा जो कमीशन माइनस करने के बाद का जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज ये कमीशन कैलकुलेट होगा.
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल profit that is 1 lakh is salary rupees 10,000 per annum, 20 commission, that is 5%. So in that case, first of all, out of profit, salary, if partner has to be provided salary, then it will be deducted. So 1 lakh minus 10,000, that means 90,000 would be coming, and on this 90,000 5% would be calculated. Simple percentage, 5 upon 100. So 4,500 commission would be given to B, and in that case what would be the divisible profit? 90,000 minus 4,500, that means 85,500 would be distributed in their profit sharing ratio. यानी कि ये जो 90,000, ये जो 4,500 आया, वो किस अमाउंट का 5% है? ऐसे प्रॉफिट का जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट profit 2,50,000 is salary, that is 2,500 per month, 20 commission, that is 10% after charging such commission. 10% on profit after charging such commission. अगर इस मेथड से कैलकुलेट करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट सैलरी वुड बी रिड्यूस्ड, तो प्रॉफिट दैट इज 2,50,000 लेस सैलरी, सैलरी मीन्स 2,500 पर मंथ, तो 25 multiplied by 12, 30,000 would be, so that means 2,20,000. So on this 2,20,000 10% is to be calculated, but remember this thing, कह रहा है कि वो 10% इस प्रॉफिट का नहीं होना चाहिए, इसमें से जो कमीशन आने के बाद, जो माइनस करने के बाद का प्रॉफिट आएगा उस पे 10% का कमीशन होना चाहिए। इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कमीशन 10% मल्टीप्लाइड बाई रेट 100 अपन रेट, तो 100 प्लस रेट 10, तो 110, इस तरीके से, दैट मीन्स 20,000 लेस कमीशन 20,000, and now profit, divisible profit that is to be distributed in partners PSR. So now see the condition here. In this case 90,000 profit, इस 90,000 का 5% 4,500 कमीशन आया था, इसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट था इसमें से 4,500 माइनस कर दिया था, यानी 85,500, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था। तो यानी कमीशन से आने, कमीशन ये क्या है? कमीशन का अमाउंट, कमीशन के अमाउंट डिडक्ट करने से पहले का जो प्रॉफिट था
उसका 5% कमीशन है। यहाँ का क्या है, कमीशन माइनस करने के बाद का जो प्रॉफिट है दैट इज 2 लाख। अभी इस 2 लाख का 10% देखो, 2 लाख का 10% 20,000 है, यानी इसका 10% नहीं है, अदरवाइज ये कितना होता, 22,000 होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो हम डायरेक्टली परसेंटेज निकाल लेंगे प्रॉफिट पे। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहेगा तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा उस पे 100/100 प्लस रेट करके निकालेंगे, ठीक है, और ये हमारा बाद में डिविजिबल प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से इसमें सेकेंड पॉइंट लिखा था ऑन सेलिंग अमाउंट, ऑन सेलिंग अमाउंट। अगर सेलिंग अमाउंट पे कमीशन मिलना होगा तो सिंपली परसेंटेज मींस परसेंटेज ऑफ कमीशन वुड बी गिवन, एंड in that case sales amount will also be given in the question, like A is to get commission at the rate 8% on total sales, that is on total sales amount was rupees 3 lakh. So in that case, this 8% commission will not be calculated on profit amount. It will be calculated on sales amount, because it is told that A is to get commission 8% on total sales. So sales amount is given. So out of this 3 lakh, 8% commission he will get. So 3 lakh commission amount will be calculated. 3 lakh multiplied by 8/100. That means 24,000 would be his commission. 24,000 would be his commission. So now before going further, we will see one question of your book. Question number C, question number 26B. Question number 26B of book is S.C. Sharma. Those who are not having book, I am sharing the question. You can take the screenshot of it, of this question. Okay, see question number 26B. It is said that X, Y and Z were partners in a firm having capitals of rupees 1 lakh, rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. Their current account balances were X rupees 6,000, Y rupees 5,000 and Z rupees 2,000. In bracket it is said debit. Debit means negative balance. तो यानी Z का नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का, बाकी पार्टनर्स का पॉजिटिव बैलेंस है. इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. Z was entitled to salary of rupees 5,000 per annum, while Y was entitled to commission amounting to rupees 4,000 per month. Y को कमीशन मिलना है, but here commission amount has been calculated. Already it is calculated 4,000. The profits were distributed as follows: the first 24,000 in proportion of their capital, and remaining profits to be divided equally. Now here it is given in different way, that out of the total divisible profit, first 24,000 would be distributed in their partners capital ratio, and remaining profits would be in what it is said that remaining profits to be divided equally. Suppose that if there will be 60,000 profit, or suppose that if there will be 40,000 profit, so first 24,000 would be distributed in their capital ratio. तो हम क्या करेंगे, उनकी कैपिटल से रेशियो बना लेंगे
और उस 40,000 में से 24,000 को तो पहले उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, अगर मानते हैं 40,000 प्रॉफिट है तो 40,000 माइनस 24,000 दैट मीन 16,000, तो 16,000 वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। इस तरीके से क्वेश्चन है में बोल रहा है। लास्ट में बोल रहा है दे ड्रीव 1,000 पर मंथ ईच एज ड्राइंग, ठीक है ना, वो 1,000 पर मंथ की ड्राइंग करते हैं। ईच बोला है तो मतलब सारे पार्टनर, तीनों पार्टनर 1,000 पर मंथ की, यानी एनुअल ड्राइंग 12,000 की सारे पार्टनर्स करते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 53,400 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। कह रहा है कि साल के लास्ट में फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ, 53,400 का, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ये सारी चीजें अभी चार्ज नहीं की गई है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया, इंटरेस्ट ऑन सैलरी नहीं दी गई, कमीशन नहीं दिया गया, इन सबसे देने से पहले का प्रॉफिट कितना है 53,400, यानी नेट प्रॉफिट 53,400 है। तो इसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है। तो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा 2020, 18, 17 जो भी होगा यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26B, क्वेश्चन नंबर 26B, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सबसे पहले इसमें मैंने बताया नेट प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट इज गिवन 53,400, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, that means net profit, it is given 53,400। अब पार्टनर्स को जो कुछ देना होता है वो क्या लिखेंगे, सब कुछ सब डेबिट साइड में। देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एट 6%, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्यों डेबिट साइड में लिखेंगे, इसके लिए मैंने पीछे की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैंने प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। इसकी पूरी जर्नल एंट्री मैंने समझाया हुआ है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई एंड जेड, ओके 6% इज टू बी गिवन। तो पार्टनर्स एक्स की कैपिटल कितना है 1 लाख, तो 1 लाख पे 6% निकालेंगे, तो दैट मीन्स 6,000। पार्टनर वाइज कैपिटल इज 80,000, तो 80,000 पे 6% कैलकुलेट करेंगे तो 4,800। एंड जेड सैलरी 60,000, तो 60,000 पे 6% 3,600। ओके, नाउ टोटल अमाउंट वुड बी रिटन इन मेन कॉलम। यानी 14,400 पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। इसी तरीके से Z was entitled to salary of 5,000 per annum, Z को सैलरी मिलेगा, टू Z सैलरी अब 5,000 पर एनम है, यानी एनुअल दिया हुआ है। अगर पर मंथ होता है तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इफ इट इज गिवन क्वार्टरली देन वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4। एंड इन द सेम केस Z was entitled to get commission, sorry, Y was entitled to commission amounted to 4,000. The to Y's commission 4,000. And now in this question commission amount is already calculated. नहीं होगा तो वैसे कैलकुलेट करना होगा जो मैंने अभी मेथड्स बताए। इसी तरीके से
और क्या इन लोग को देना है, सैलरी। अब देखो यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है, पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है, तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी चार्ज ओनली इफ देयर इज एन एग्रीमेंट। तो इस क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। तो नाउ वी विल सी द दैट वेदर देयर इज डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस। तो 53,400 इसमें से ये सारा टोटल माइनस करेंगे, 23,400। दैट मीन्स क्रेडिट साइड इज एक्सेस ओवर द डेबिट साइड, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड एक्सेस होगा क्रेडिट पे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको दैट मीन्स 30,000, दिस 30,000 कैन बी सेड एट डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि उनको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग तरीके से करना है। बोल रहा है फर्स्ट 24,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, यानी 30,000 में से 24,000 को उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शन में लेना है, और बाकी रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 24 इसमें से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 6,000। तो दैट 6,000 अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो, कैपिटल से रेशियो कैसे बनाते हैं, सारी पार्टनर्स का कैपिटल पहले लिख देते हैं। इसका दिया है 1 लाख, वाई का दिया है 80,000 एंड जेड का दिया हुआ है 60,000। तो 4040 कॉमन है, 40 कट कर सकते हैं। नाउ 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। तो रेशियो इज 543। 543 के रेशियो में क्या करेंगे, इसमें से बोल रहा था पहला 24,000, तो 24,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एज प्रॉफिट इक्वल टू 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 अपन में 12। दैट मीन्स 10,000। 20 प्रॉफिट इज उसी 24,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4/12। सॉरी एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई एंड जेड को इस 24,000 में से मिलेगा 3/12। दैट मीन्स 6,000। This is the appropriation of only for 24,000 profit. Now this 30,000 minus 24,000 कितना बच गया, 6,000। तो कह रहा है 6,000 को इनको रिमेनिंग, यानी इट इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। तो इक्वल का मतलब अगर इफ देयर आर 3 पार्टनर्स तो देन रेशियो विल बी 1:1:1 इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन इक्वल रेशियो। तो इक्वल रेशियो के लिए यानी 1/3, एक्स के लिए भी 1/3, वाई के लिए भी 1/3, जेड के लिए भी 1/3। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो दैट मीन्स 2,000। तो 2,000, अब ये 2,000 सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लस 2,000 इसको, 2,000। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 24,000 में से इसको 10,000 मिला, इसको 8,000, इसको 6,000, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच रहा है दैट मीन्स 6,000, उसमें से सबको इक्वल मिल रहा है 2,000। तो टोटल प्रॉफिट एक्स को कितना मिला, 12,000, 10,000 एंड 8,000। दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, इफ देयर विल बी current account given in the question, then their profit would be transferred to their current account, not in their capital account. ठीक है, कभी भी हम फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसका मतलब इसमें पार्टनर्स कैपिटल अलग बनाएंगे, करेंट अकाउंट अलग बनाएंगे। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ही सारा यानी सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑल थिंग्स वुड बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओनली। तो यहाँ पे हमें करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब करेंट अकाउंट
सारा कुछ करंट अकाउंट में जाएगा, तो इसलिए हमने प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बल्कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में। एक्स वाई जेड, एक्स प्रॉफिट 12,000, जेड्स वाई's profit 10,000 and Z's profit is 8,000. So that means this is 30,000 total profit. Now 53,400, 53,400. Profit and loss appropriation account is complete. Okay. Now we have to prepare partners current account. There are 3 partners, so for all the partners there will be column on the debit side as well as credit side. Okay, now here particulars column X, Y, Z. Again particulars for credit side X, Y and Z. These are debit side and these are credit side. Okay, now see if there is balance given for current account. तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, बट जरूरी नहीं है, इट विल नॉट बी नेसेसरी दैट all the times current account balance will be given. In this question it is given, तो इसके लिए x के लिए 6,000, y के लिए 5,000. तो अब इस किस साइड में हम लिखेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी. फॉर इंटरनल लायबिलिटी और यू कैन से फॉर एनी लायबिलिटी बैलेंस इज क्रेडिट, तो इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस BD. It is given 6,000 for X and for Y it is 5,000 and for Z it is given 2,000 but there is debit balance, तो यानी इसका क्रेडिट बैलेंस नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है, इधर बैलेंस लिखेंगे इसको, टू बैलेंस BD कितना 2,000. ठीक है. इसी तरीके से पार्टनर्स को क्या क्या दिया गया, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स को जो कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है उसकी कैपिटल की या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बाय इसके लिए जर्नल एंट्री मैं लिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, ये हमारा आया था 6,000. ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने अभी लिखा. वाई के लिए आया था 4,800 और एक्स के लिए क्या था 3,600. इसी तरीके से पार्टनर जेड को सैलरी मिल रही है, क्या है, इसको सीधे लिखेंगे हम सैलरी. किसको मिल रही है, क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना, एक्स को मिल रहा है. नो, सैलरी वाज टू बी गिवन टू जेड. ठीक है, जेड को सैलरी दिया गया कितना 5,000. इसी तरीके से कमीशन, वाई को क्या मिला, कमीशन. ठीक है, 4,000. तो एक्स को कुछ नहीं मिला, 4,000 किसको मिल रहा है, वाई को. जेड को कुछ नहीं मिला. इसी तरीके से शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो वो हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, उसमें कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसको मिला था 12,000, y was getting 10,000 and z 8,000. It was distributed. And now if there is anything from which partners capital balance is reducing or current account balance, so yes, drawing is given.
तो फॉर ड्राइंग एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग their capital or current account balance would decrease, so they will be recorded on debit side. To drawings, ठीक है ना, पार्टनर्स की ड्राइंग दिया 1000 पर मंथ, दैट मीन्स एनुअल ड्राइंग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 एंड 12,000 ईच बोला है तो सारे पार्टनर ने ड्राइंग किया 12,000 क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बोल रहा है, सीधे हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, पार्टनर्स का एक एक पार्टनर्स का बैलेंस निकालेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले देखेंगे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड एक्सेस है इसलिए क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो इधर $24,000, तो इधर भी 24,000 का टोटल होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, टू बैलेंस सीडी कितना 12,000, ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए हम टोटल करते हैं 23,800, तो ये भी वही होना चाहिए 23,800। बैलेंस इधर कम है, बैलेंस इधर ही होगा, ये हमारा 800 पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11,800, ठीक है। आंसर चेक करते चल रहे हैं। इसका करंट अकाउंट का बैलेंस 12,000, इसका दिया है 11,800। इसी तरीके से जेड का बैलेंस, जेड का भी देख रहे हैं, इधर 12,000 और इधर ये एक क्रेडिट ही एक्सेस है इसलिए बैलेंस इधर ही होगा 16,600। ये हमारा आ जाएगा 6, ये हमारा आ रहा है 2,600, ठीक है। जेड का जो करेंट अकाउंट का बैलेंस है, नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो ऊपर लिखेंगे और बाद में सारी चीजें पार्टनर्स को इसी अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। जब भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो सब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसी तरीके से ड्राइंग्स, ऑल द थिंग्स वुड बी रिकॉर्डेड इन देयर करंट अकाउंट ओनली, नॉट इन देयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। So now moving further, let's see one more question. Question number 30 in your book. Question number 30. Question I am sharing. You can take the screenshot of it. Okay, see question number 30. X and Y are partners in a firm contributing rupees 1 lakh and rupees 80,000 as their capital. On 1st April 2019, they agreed to share profit in the ratio of 2:1. The partnership deed provided the followings. First point is given: partners are allowed interest on capital at the rate 5% and are charged interest on drawing at the rate 6% per annum. X withdrew 1,000 per month at the beginning of each month, while Y withdrew 800 per month at the end of each month during the year. X is entitled to commission of 10% of net profit for securing contract from customers. कह रहा है कि क्या है, X जो है that is to get commission of 10% of net profit for securing contract from the customers, ठीक है। इसी तरीके से Y is also entitled to commission of 10% of net profit after charging commission payable to X. कह रहा है कि Y को भी इंटरेस्ट कमीशन देना है 10%, कह रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन पेबल टू X. X को कमीशन जो पे करना है उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से उसको देना है। इसी तरीके से X is entitled to rent to rupees 1,500 per month for the use of his premises by firm, ठीक है। X is entitled to rent of rupees 1,500 per month. X को क्या है, रेंट मिलना चाहिए, कितना 1,500 पर मंथ का,
यानी पार्टनर्स को रेंट का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट वाज 69,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 1920। ओके, so in this question we have to prepare profit and loss appropriation account. Okay, question number 30. Okay, one more thing. In this question, partner's rent is given, and you know that partner's rent is charge against profit. It is not an appropriation account. It is not an appropriation of profit. Partners So before discussing the question, I have to discuss one thing here regarding partner's rent. Partner's rent. That means if any partner is giving any of his property to the firm for use, and if the partner is getting rent over his sublet buildings, so in that case the rent which would be given to the partners, that will be the charge against profit for the partnership firm. That means it will not be the appropriation of profit. मतलब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हम माइनस करेंगे ही करेंगे। जैसे मैंने पार्टनर्स के लोन के केस में बताया था कि हम कहीं से भी पार्टनरशिप फॉर्म में लोन लेते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल पार्टी से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, या कोई पार्टनर ही फॉर्म में लोन का पैसा देता है, तो उस केस में जो पार्टनर्स को लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एंड ऑल द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So in the same case, partners rent, if any rent amount is paying to the partners, then this rent is charged against profit and it will be shown in the profit and loss account. So for this question there is a requirement of preparation of profit and loss account. Profit and loss account for the year ended 31st March 2020. Profit to profit by profit, it is given 69,000 and partner X is getting rent per month, so that means 1500 per month. 1500 multiplied by 12, that means 18,000. तो 2 क्या है, X रेंट, 2X यानी पार्टनर्स रेंट 18,000. नाउ न्यू प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट 69,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो इट विल कम 51,000. That means net profit is 51,000. This will be transferred to profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. By profit and loss account
नेट प्रॉफिट 51,000. Okay, what is to be provided? Interest on capital. Interest on capital at the rate 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई. ठीक है, एक्स एंड वाई. अब यहाँ पे देखो एक्स का कैपिटल है 1 लाख एंड वाइस कैपिटल इज 80,000. तो 5% निकालेंगे. 1 लाख पे 5% हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 लाख पे 5% निकालेंगे तो हमारा 5,000. ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना 5/100. इसी तरीके से 80,000 पे 5% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 4,000. टोटल 9,000 मेन कॉलम में लिख देंगे. इसी तरीके से किसी और पार्टनर्स को कुछ मिलना है. एक्स को ड्राइंग इन्होंने किया हुआ है. देखो इसके पहले ड्राइंग दे रहा है. एक्स की ड्राइंग है, वाई की ड्राइंग है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में नहीं. यानी कि इंटरेस्ट ऑन, अगेन ड्राइंग इज गिवन बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसके बारे में आप सीधे लिखना है एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सिक्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स. कह रहा है कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना, यानी आउटसाइडर्स को सारी डील करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन किसको देना है? एक्स को देना है. तो यानी कि टोटल प्रॉफिट 69,000 था जिसमें से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट 18,000 माइनस करना था. माइनस किया 51,000. अब यही हमारा नेट प्रॉफिट है. इसी पे हमको 10% का कमीशन किसको देना है? एक्स को. तो 2x कमीशन. हाँ, 51,000 का कितना निकालना है? 10%. तो इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 5,100. इसी तरीके से y, थर्ड पॉइंट, y is also entitled to commission 10% of net profit after charging commission payable to x. अब देखो बोल रहा है कि y is also getting commission of 10% of net profit. ये भी नेट प्रॉफिट का 10% y को भी मिलना है. बट आगे क्या बोला हुआ है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन पेबल टू x. यानी उस नेट प्रॉफिट पे हमको कमीशन कैलकुलेट करना है जिसमें से x को पे करने वाला कमीशन दिया जा चुका हो. तो इस नेट प्रॉफिट में से x का कमीशन माइनस करेंगे. 51,000 माइनस 5,100. ठीक है, तो ये हमारा आएगा 45,900. सॉरी 45,900 आ रहा है. 51,000 में से माइनस किया. अब इसी अमाउंट पे यानी नेट प्रॉफिट में से एक्स को यही कमीशन देना था. ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया इसी पर 10% किसको देना? वाई को कमीशन देना है. तो वाइस कमीशन. मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए किया है कि वर्डिंग समझ जाओ. ठीक है, वर्डिंग कि किस प्रॉफिट पे या किस अमाउंट पे कमीशन कैलकुलेट करना है. तो क्लियरली बोला है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पेबल कमीशन टू एक्स. एक्स नेट प्रॉफिट में से जो कमीशन चार्ज करना है एक्स को वो माइनस कर दीजिए. जो आएगा उसी पे 10% वाई को दीजिए. तो इस पे 10% निकालेंगे तो 4590. 4590. अब देखते हैं क्वेश्चन में कुछ और है. तो और कुछ भी नहीं दिया हुआ है. ड्राइंग इनकी दिया हुआ है बट इंटरेस्ट देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एग्रीमेंट हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है. देखो ऊपर फर्स्ट पॉइंट में दिया है जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है वही बोल रहा है आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम. यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स एंड वाई. अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इन्होंने ड्राइंग किया हुआ है. लिख रहा है एक्स विड्री 1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. यानी हर मंथ 1,000 की ड्राइंग कर रहा है और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. एवरेज पीरियड से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, एवरेज पीरियड से कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज पीरियड इसका कितना आएगा? ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. तो पहली ड्राइंग अप्रैल में करेगा. अप्रैल से ईयर एंड तक 12 मंथ. एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मैंने लिखवाया द टाइम लेफ्ट यानी लास्ट ड्राइंग कब करेगा?
मार्च में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ। तो इसका मतलब ये इसका एवरेज निकालेंगे 13/2 6.5 मंथ्स। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू एनुअल ड्राइंग मैंने लिखवाया था फॉर्मूले में 1000 पर मंथ निकालता है, तो साल में कितना निकालेगा 12,000। इंटरेस्ट रेट इट इज गिवन 6% एंड 6.5/12। ओके, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे। ठीक है, 1 0 2 0। तो 390 एंड व्हाट अबाउट, ये तो x का था, y फॉर y एवरेज पीरियड y के लिए कैसे निकालेंगे? y विड्रॉ कर रहा है, y इज विड्रॉइंग 800 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है, तो एवरेज पीरियड है, पहली ड्राइंग कब करेगा? अप्रैल के एंड में, यानी लास्ट तक कितना बचेगा 11 मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग होगी, 31 मार्च टू 31 मार्च 0, यानी ये 11/2 5.5 मंथ्स। ठीक है, 5.5 मंथ्स। इसको हम ऊपर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, एनुअल 800 पर मंथ, तो 800 पर मंथ तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एनुअल ड्राइंग इज 9600। तो 9600 मल्टीप्लाइड बाई 6% इट इज गिवन एंड 5.5/12। पॉइंट हटाने के लिए मैंने बताया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे 1 0 लगाएंगे, 0 0। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा सीधे ठीक है, अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट सकता है, ठीक है। अब ये 80 ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 264। ठीक है, x का आया था हमारा 390 और y का कितना आ रहा है 264। ठीक है, इसको हम टोटल कर देंगे, सॉरी 654। नाउ वी विल सी द डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। तो ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 51,654 माइनस करेंगे सबको ऐड करके 0 9 4 32,900 32,964 ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इसको किस रेशियो में, तो इधर पहले लिख देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब यहाँ कैपिटल अकाउंट में करना है, करेंट अकाउंट में, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड मानेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाइज प्रॉफिट। ठीक है, इसको किस रेशियो में बांटना है, ऊपर इनका पीएसआर दिया है 2:1 2:1 फॉर एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स शेयर 2:1 means
2/3 21,976 और y के लिए यही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,988 10,988 ठीक है। इसी तरीके से टोटल लिख देंगे। टोटल हमारा आया था 51,654 51,654 नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे क्वेश्चन होमवर्क करना होगा। कल से हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है, हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।